صدر مشاعرہ جناب چاچا دھرمپال سنگھ صاحب، مکھ سہیوگی خورشید بھیا صاحب، محمد اشتیاق خان چیئرمین صاحب، شورائے کرام، شاعرات، آفیسر صاحبان، پترکار ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں۔ اٹھو اٹھو میری دنیا کے عام انسانوں، یہ کام سب کا ہے، 2 4 10 کی بات نہیں۔ ابھی اشتیاق صاحب جو آپ کے چیئرمین ہیں مسلسل 1 گھنٹے سے تقریر کر رہے تھے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان کی زبان بول رہی ہے یا ان کا دل تڑپ رہا ہے۔ ان کی زبان میں، ان کے دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے جو نیک جذبات اپنی آبادی کے لیے ہیں، اپنے عوام کے لیے ہیں، وہ جذبات زبان پر خوبصورت الفاظ میں تبدیل ہو کے آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ میں ان کے ایک ایک لفظ کو سن رہا تھا اور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کہاں تک اشتیاق خان کی شخصیت ہے اور کہاں سے تنبور کا ایریا شروع ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو گئے ہیں، دونوں ایک دوسرے میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی شریف، نیک اور خلوص بھرا دل رکھنے والے انسانوں کی سیاست میں ضرورت ہے۔ اگر ایسے لوگ سیاست میں رہے تو یقیناً اس علاقے کا فائدہ ہوگا، یہ مجھے یقین ہے۔ میں اشتیاق بھائی کو ایک بار پھر مبارکباد دے رہا ہوں اور انہیں دیکھ کر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آسان منزلیں ہیں اگر چل پڑے کوئی، آسان منزلیں ہیں اگر چل پڑے کوئی، دشوار راستے ہیں اگر سوچتا رہے۔ آپ اگر چلتے رہیے تو بڑی سے بڑی منزل آپ کا قدم چومے گی، اور آپ سوچتے رہیے تو ایک قدم کا فاصلہ بھی سینکڑوں میل کا فاصلہ بن جائے گا۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ ہزاروں میل کا فاصلہ بھی کسی دن پہلا قدم اٹھا کر ہی شروع کیا جاتا ہے۔ تو ابھی میں نے دیکھا کہ جس ایمانداری کے ساتھ، جس سچائی کے ساتھ انہوں نے اپنی غربت کا تذکرہ کیا اور اپنی غربت میں جو جدوجہد اور سنگھرش شامل کیا، اس جدوجہد اور سنگھرش نے انہیں جو یہاں تک پہنچایا ہے، اس ایمانداری کے بیان کو سن کر کے مجھے ان سے ایک جذباتی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ ورنہ انسان اپنی کمزوریاں ہمیشہ چھپاتا ہے، اپنی غربت چھپاتا ہے۔ آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کو اگر غریب ہے تو اس کے بارے میں تسلیم نہیں کرتا کہ یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، یہ انسانی کمزوری ہے۔ مگر اشتیاق صاحب جس طرح سے اپنی غریبی اور غریبی کے ساتھ اپنے سنگھرش اور جدوجہد کا تذکرہ کر رہے تھے، میں اس کے لیے انہیں بے انتہا مبارکباد دیتا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہندوستان کا مستقبل ہیں۔ یہ بچے نہ صرف ہندوستان کا مستقبل ہیں بلکہ اردو زبان کا مستقبل ہے، ہندی بھاشا کا بھوشیہ ہے۔ میں ان بچوں کے لیے ساری نیک خواہشات پیش کر رہا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ساہتیہ اور ادب جو ہے، یہ ہمارے اندر کی سبھیتا اور ہمارے اندر کی جو تہذیب ہے، اس تہذیب کو جگایا کرتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کبھی تہذیبیں نہیں ٹکرائی ہیں، جب ٹکرائی ہیں تو وحشتیں ٹکرائی ہیں۔ ہمارے اندر کا جنگلی پن ٹکرایا ہے، ہمارے اندر کی تہذیب اور ہمارے اندر کی سبھیتا اور سنسکرتی جو ہے وہ کبھی نہیں ٹکرائی ہے۔ یہ ساہتیہ کا منچ، یہ ادب کا اسٹیج جو ہے، یہ ہمیں اندر سے تہذیب یافتہ بناتا ہے۔ اگر ہم ساہتیہ کو، ادب کو، شاعری کو غور سے سنتے رہے تو ہم ضرور ایک رات میں اتنے مہذب ہو جائیں گے کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا ہم
सीख जाएंगे। ये कहा जाता है कि एक अच्छी और सच्ची शायरी जिस वक्त पेश की जाती है तो लगता है कि जैसे कोई शख्स अपने हाथों में एक बूंद शहद लेकर समुंदर के सारे खारे पानी को मीठा बनाने की कोशिश कर रहा हो। ये शायरी, साहित्य और अदब का कारनामा हुआ करता है। इस दयार के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि ये उलमा का दयार है, दानिश्वरों का दयार है और शहीदों का दयार है। यह शेख शहीद बंदे हसन एक ऐसा नाम है जो नाम तारीख़ के सफ़हात में महफूज है, मगर अवाम के जहनों में ये नाम नहीं है। ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने इलाके के जिन लोगों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है, जो लोग अंग्रेज़ों से टकराए हैं, जिन लोगों ने अपने लहू की एक एक बूंद जो है मुल्क की मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने में सर्फ की है, मैं उन सब लोगों को हमें याद करना चाहिए, खिराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। अपने मुल्क के, अपने वतन के ज़र्रों से अगर आप मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप पूरे मुल्क से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। पहले जहां आप पैदा हुए हैं वहां के ज़र्रों से मोहब्बत करिए और वहां जो सितारे पैदा हुए हैं, वो शख्सियतें, वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटीज़ जो सितारे और चाँद बन गई हैं, उनका आप जहनों में उनकी एक तस्वीर रखिए, तारीख़ में उनका नाम महफूज रखिए और उनके नाम का ऐलान करिए कि हमारे दयार ने ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतों को जन्म दिया है। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको अपनी मोहब्बतों का सलाम पेश करते हुए कि मेरी जबीन अक़ीदत सलाम करती है, कबूल होगी मोहब्बत सलाम करती है। मैं इन लफ्ज़ों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ, मैंने इनको आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बताया है, आने वाले हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल बताया है, हिंदी भाषा का भविष्य बताया है। तो मैं इन बच्चों से उम्मीद रखता हूँ कि अभी मैंने तहज़ीब और सभ्यता की जो बातें की हैं उसका ख्याल ये बच्चे भी रखेंगे और बच्चों के करीब जो बड़े लोग बैठे हैं वो इनको तहज़ीब याफ्ता रहने के लिए आमादा करेंगे। इन लफ्ज़ों के साथ गुफ्तगू ख़त्म करते हुए मुशायरे को कामयाबी की ज़मानत मिलने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि उस शख्सियत के हुजूर नजराने अक़ीदत पेश कर दिया जाए जिसके सदक़े में ये कायनात बनी है। ये कहा जाता है कि बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है। आइए उस शख्सियत के हुजूर अक़ीदतों का नजराना न सिर्फ हिंदुस्तान के गली कूचों में शोहरत रखने वाला शायर बल्कि उर्दू दुनिया के मंजरनामे पर अपनी आवाज़, अपनी शख्सियत और अपने अंदाज की खुशबू बिखेरने वाला अल्ताफ़ ज़िया से मैं गुजारिश करूं कि वो आएँ और नात पाक से मुशायरे का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम। बारगाहे सैयदुल मुरसलीन में नाते पाक का खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ और आप तमामी हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि मैं नाते पाक पढ़ने जा रहा हूँ। बराए करम आप तालियाँ न बजाएं, सुभान अल्लाह कहें तो नेकियाँ भी मिलेगी और राहत भी मिलेगी। मैं यहाँ से अपना सफ़र शुरू करता हूँ। नाते पाक का एक ऐसा शेर आपकी समातों की नज़्म करना चाहता हूँ। अगर यकीन ना आए तो आप अभी तजुर्बा कर लें जो मैं कहने जा रहा हूँ। अगर ये सच ना हो, ऐसा ना होता हो आपके साथ, तो पूरा मजमा खामोश रहे, चुप रहे। पेश करता हूँ नाते पाक का मतलब। हाँ भाई, इरशाद। जिसे कहते हैं जन्नत, जिसे कहते हैं जन्नत, मैं वो जीना देख लेता हूँ।
जिसे कहते हैं जन्नत, जिसे कहते हैं जन्नत, मैं वो सीना देख लेता हूँ जब आंखें बंद करता हूँ, मदीना देख लेता हूँ जब आंखें बंद करता हूँ, मदीना देख लेता हूँ जब आंखें बंद करता हूँ। जिसे कहते हैं जन्नत मैं वो सीना देख लेता हूँ, जिसे कहते हैं जन्नत मैं वो सीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ, मदीना देख लेता हूँ जब आंखें बंद करता हूँ। इश्तियाक साहब, हेलो, शेर पेश कर रहा हूँ नाते पाक का मुलाज़िम मैं। जब आंखें बंद करता हूँ मेरे सीने में है मौजूद शाह सैयद आलम। मेरे सीने में है मौजूद शाह सैयद आलम, जब उनकी याद आती है तो सीना देख लेता हूँ, जब उनकी याद आती है तो सीना देख लेता हूँ, जब उनकी याद आती है, जब उनकी याद आती है तो सीना देख लेता हूँ, जब उनकी याद आती है। और बिलखुसूस ये शेर पेश कर रहा हूँ मेरे मुहतरम प्रोफेसर अनवर जलाल पुरी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि नाते पाक से मैं इस मुशायरे का आगाज कर सकूँ। एक शेर आपकी समातों की नज़्म करना चाहता हूँ, बता दो। मैं आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ, नबी की याद में जब मेरी आंखें भीग जाती हैं, नबी की याद में जब मेरी आंखें भीग जाती हैं, नबी की याद में, नबी की याद में जब मेरी आंखें भीग जाती हैं, मैं अपने खाली दामन में खजीना देख लेता हूँ, मैं अपने खाली दामन में खजीना देख लेता हूँ, मैं अपने खाली दामन में खजीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ, मदीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ, मदीना देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्ताफ ज़िया क्या कहने हैं। गज़ल के मैदान में आपने जो जौहर दिखाए हैं, नात का मैदान भी जब आपने उसको छुआ तो उसमें भी अपनी अक़ीदतों का नजराना इस तरह से पेश किया कि ये यकीन हो गया कि नात कहने वाला शायर सिर्फ फनकार नहीं होता बल्कि ग़ुलाम अहमद मुख्तार हुआ करता है, तभी वो सच्ची नात का हक अदा कर सकेगा। जनाब अल्ताफ ज़िया नात पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। बिल्कुल लग रहा था कि सरकार की ग़ुलामी का जज्बा उनकी नस नस में शामिल है। मैं खुद सोच रहा था, तवज्जो से उन्हें सुन रहा था, इश्तियाक भाई को मुबारकबाद दे रहा था कि क्या चुन चुन करके उन्होंने शोरा को बुलाया है। अल्ताफ ज़िया की नात पाक
मदीने की मिट्टी जिसे आँखों का सुरमा बनाना हमारे लिए इफ्तिखार की बात है, वहाँ का वो जिक्र कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये दीवाना ज़माने भर की दौलत छोड़ सकता है, ये दीवाना ज़माने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। ये थे जनाब अल्ताफ़ ज़िया जो अपनी अक़ीदतें भरपूर अंदाज से नात के पैकर में पिरो रहे थे, समो रहे थे।